بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شروعات کر لیتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر وزیر اعظم شہباز شریف سے ہی. ان کے لیے ستارے کیسے رہیں گے؟ ان کے ستارے کیا گردش میں رہیں گے یا چمکتے ہوئے نظر آئیں گے؟ کیا امکانات ہیں 2026 میں؟ شہباز شریف صاحب اب ستاروں کے حساب سے سیف زون میں آ چکے ہیں جب سے اکتوبر 2025 گزرا ہے. وہاں تک ان پہ بہت پریشر تھا اور جو ہے اس کے بعد سے اب میں کہہ سکتی ہوں کہ ان کا ستارہ سیف زون میں ہے. آلرائٹ، ٹھیک ہے. سامیہ یہ بتائیے، مریم نواز صاحبہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے ستارے کیا کہتے ہیں 2026 کے بارے میں؟ دیکھیں، جب مریم نواز صاحبہ نے ابھی عملی سیاست میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، اتنی پرانی بات ہے یہ، میں تب کہتی تھی کہ 2025 والا جو سال ہوگا وہ مریم نواز صاحبہ کو ان کی ایفرٹس کا ریوارڈ دے گا، ان کی جو پولیٹیکل ایفرٹس ہیں. ابھی تھوڑا سا ٹائملی ستارہ ذرا سلو ہے، جس کی میں ان کو کہنا چاہوں گی کیونکہ یہ ستارہ کبھی کبھی اوور کانفیڈنٹ بھی انسان کو کر دیتا ہے. جب جوپیٹر کی یہ دشا، تو نہیں میں لفظ یوز کروں گی، جب جوپیٹر کی یہ بلیسنگ آپ کو مل رہی ہو تو جو ہے 11 مارچ تک اگر وہ وائزلی چیزوں کو لے کے چلتی ہیں تو 11 سے مارچ سے لے کے جون ختم ہونے تک 2026 پھر ان کا جو ہے یہ کچھ اور بھی ان کو پاورز اور اختیارات اور اس طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں. اچھا سامع، مریم نواز کا موازنہ نا اکثر بلاول بھٹو سے کیا جاتا ہے کیونکہ دونوں پارٹیز جو ہیں اپنا سیاسی مستقبل ان دونوں میں دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو بلاول بھٹو کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ آصف علی زرداری، کیا مواقع ان کے لیے ہو سکتے ہیں؟ کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب پیپلز پارٹی نے الیکشن لوز کیا تھا اور نون لیگ نے ٹیک اوور کیا تھا تو میں کہتی تھی 10 سال لگیں گے پیپلز پارٹی کو کم بیک کرنے میں. اور پھر مجھے پیپلز پارٹی کے ان کے ہی جالوں نے بتایا کہ میڈم پورے 10 سال کے بعد صدر آصف علی زرداری ایوان صدر میں پہنچے ہیں. ایک تو صدر آصف علی زرداری کی ہیلتھ اب جو ہے انڈیکیٹ کرتی ہے اس سال کے سیکنڈ ہاف میں کہ ان کو اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے. دوسرا، جو ان کی فیملی میں جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلاول صاحب اسی طرح بھی چلتے ہوئے نظر تو آتے ہیں ہمیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2026 سے آصفہ بھٹو زرداری ایک کہتے ہیں نا متحرک قدم رکھیں گی اور ان کا قدم رکھنا سیاست میں پیپلز پارٹی کے لیے بہت خوش آئند ہوگا کیونکہ 2026 والا سال ہے 2026 ہے ہی وومن امپاورمنٹ کا سال ہے. تو میں کہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کے لیے یہ آپ نے جو بولا ہے نا کہ 2026 ویمن امپاورمنٹ کا سال ہے تو ہمیں بھی ڈیفینیٹلی خوشی ہوئی. اچھا جی، ایک چیز جو اس وقت جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں اینڈ اس ایز ویل کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب، ان کی مشکلات کچھ ہوں گی یا 2026 بھی ایسے ہی گزرے گا؟ میں نے 23 میں کہا تھا کہ مجھے بانی پی ٹی آئی کے ستارے انہیں آئسولیٹڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئسولیشن جلاوطنی بھی ہو سکتی تھی، قید تنہائی بھی ہو سکتی تھی اور اللہ نہ کرے جان کو بھی خطرہ تھا. پھر 25 والے سال میں نے کہا 25 مئی 2025 تک ان کی رہائی ہونی ہی ڈیل کے نتیجے میں ممکن ہے تو ان کی رہائی کی کوشش کریں. لیکن مجھے لگتا تھا لیڈران مجھے انٹرسٹڈ نہیں لگتے. اب آتا ہے جی 2026 تو مڈ فیبروری تک تو ستارے ابھی ایک تیسرا چانس دینے جا رہے ہیں یہ ان کو. تھرڈ چانس جب سے وہ قید کے اندر گئے ہیں. اگر اس وقت بھی کوئی بات نہیں سرے چڑھتی تو پھر آگے میرے پاس جواب نہیں ہے کہ کب رہائی ممکن ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ کوئی انقلاب آ جائے گا ملک میں یا وہ جو ہے آ کے اقتدار سنبھال لیں گے، اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. بلکہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز کہنا چاہوں کہ سیٹرن 16 فیبروری 2026 میں فال کرنے جا رہا ہے. تو یہ سیاست دانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اور اہل بالکل. اچھا، ہم نے انڈیویجولی تمام پرسنالٹیز کی تو بات کر لی ہے لیکن اوورآل جو ملکی مجموعی سیاست ہے یا سیاسی صورتحال ہے وہ اکثر ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ نازک موڑ سے گزر رہی ہے. ابھی آنے والا سال پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کتنا اہم ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہیں ستارے؟ 2026 ستارے اشارہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں نظام کی تبدیلی بھی ممکن ہے. وہ کیا نظام اگلا ہو سکتا ہے، وہ پریزیڈینشل ہے، وہ کیا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے. لیکن جو ہے یہ کیونکہ جو ہے نا پولیٹکس ملک کی اور پولیٹیشن یہ تھوڑا سا اپنی ساکھ کو کھوئے نا، بلکہ روایتی سیاسی طریقہ چھوڑ کے میں تو کہوں گی
पार्टी परस्ती या शख्सियत परस्ती छोड़ के इस सबके लिए लम्हा ये है कि वतन परस्ती का सोचिए। तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो ये निजाम आपका पार्लिमानी चलता रहेगा, वरना निजाम की तब्दीली का इशारा 2026 ठीक है। सामिया, बड़ी अच्छी बात जो आपने की है ना वो बानी पीटीआई के बारे में कि ये तीसरा मौका अब आने वाला है, तो जितने भी पीटीआई के लोग हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनकी रिहाई के लिए मजीद कोशिशें की जाए। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक शख्सियत के बारे में अगर मैंने ना पूछा तो ज्यादती हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका लिए क्या है सियासी मंजरनामा? 2026 कैसा रहेगा उनके लिए? कुछ लोगों का सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनमें शहबाज शरीफ साहब हैं, हमारे साबिका वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, और जो है फजलुर रहमान साहब भी शामिल हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान को आप सियासत से माइनस नहीं कर सकते। वो एक अहम मोहरा है जो कि वक्त आने पे अपनी अहमियत उनकी वो अपनी तस्लीम करवा लेते हैं। तो क्योंकि उनका सियासी सितारा स्ट्रॉन्ग है तो हम ये नहीं कह सकते कि बशर्ते जिंदगी कि वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा सामिया, पाकिस्तान के सितारे क्या कह रहे हैं ये जरा हमें बताएं, क्योंकि सिफारती लिहाज से 2025 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा कामयाबियां पाकिस्तान ने इसमें समेटी हैं। आने वाला साल पाकिस्तान के लिए कैसा होगा सिफारती लिहाज से? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो जो एक लम्हा फिक्रिया जो एक और है कि दुनिया के जब हम बात करते हैं तो दुनिया जा रही है थर्ड वर्ल्ड वॉर के जोन में, ठीक है। अब खुशकिस्मती कहिए कि ये खित्ता सेफ है। उस दौर में ये खित्ता दूसरे मुल्कों की जंग लड़ता हुआ अब हमारा लोग और हमारा खित्ता इस्तेमाल हो सकता है, हमारी सरजमीन इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन ये खित्ता इस हालात में सेफ है। यूरोप की पट्टी पे खतरा है, अमेरिका का रिसेशन तेज हो सकता है, डॉलर जो है उसका फॉल नजर आता है, इंडिया में हालात बहुत बुरे अंदर उनके कशीदा हो सकते हैं, उनके अपने अंदर अलहदगी की खबरें आपको जो तहरीकें ऐसी बन सकती हैं। तो यूरोप की पट्टी पे खतरा है। तो ये जो जंगें हमें अभी रुकी हुई नजर आती हैं, जैसे मैं 2021 से ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का देती आ रही थी, सॉरी एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ जो है, तो वो जर्नी तेज हो जाएगी। जंगें अभी पॉज है, किसी वक्त भी प्ले का बटन दोबारा दब सकता है जंगों के ऊपर जो है। और जो है ये एक जो नई ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी और नए सुपर पावर का अलायंस होगा। अब तो बहुत इम्कान है कि चाइना हो सकता है नई सुपर पावर बने, और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये होगी कि पाकिस्तान उसी अलायंस का पार्ट बनेगा जो नई सुपर पावर डिसाइड होने जा रही है अल्लाह की तरफ में, जो नया वर्ल्ड अलायंस बनेगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान सेफ है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है 2026 में अल्लाह करे अवामी रिलीफ की खबर भी बनती है। क्यों, कैसे कि सरमायाकार भी आएंगे, सरमायादारी भी आएगी, नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो वो जो हम एक आज तक हम एक यतीम बच्चों की तरह जिंदगी गुजारे थे, तो अब हमारा वो स्टेटस 2026 में ये सारी बातें जो आप बता रही है ना, इनके असरात होते हुए हमें नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। और फिर रीजनल पॉलिटिक्स की या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो उसके अंदर भी पाकिस्तान एक अहम मोहरा कहना चाहिए, एक अहम फरीक कहना चाहिए, एक अहम मुल्क जो है ना वो बनता जा रहा है। अच्छा, ये तो हमने बात करी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी सियासत और सियासतदानों के बारे में। ये बताइए जो ज़ोडिक साइंस हैं जितने भी, उनमें से किसके लिए साल 2026 अच्छा रहेगा, किसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, या उनको एहतियात करनी चाहिए? एक एक करके अगर आप उनके बारे में बता दें सामिया। पहला सितारा एरीज यानी कि बुर्ज हमल। वार्निंग जोन पहले बताऊंगी, मीठी खबर बाद में रखती हूँ। तो वार्निंग जोन ये है कि अपने रिश्ते बचाने हैं, अज़दवाजी हैं, बिजनेस रिलेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे सितारा जो है ना मजे ले सकता है आपके रिलेशनशिप को खराब करके। और ब्लेसिंग मेरे वो एरीज जो घर बदलना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, घर वालों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये दी बेस्ट टाइम उनको इस वक्त जिंदगी देखी जा सकती है। अगला सितारा है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। और आपके लिए कहाँ पे ब्लेसिंग जो है वो नजर आती है? जो लोग शहर बदलना चाहते हैं, मनपसंद तबादला पोस्टिंग लेना चाहते हैं, नई रिश्तेदारियां करना चाहते हैं और रिश्तेदारों के साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, टाइम इज गुड जो है 2026 का जो है। अलार्मिंग कहाँ है?
आपने स्ट्रेस का शिकार खुद को नहीं होने देना, ब्रेन डिवाइस पे प्रेशर नहीं आने देना, वरना अल्लाह ना करे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो आपके पैदा ना हो जाएं। अगला सितारा जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौजा, इनकी जो ब्लेसिंग वाला जेमिनाई का है कि अल्लाह पाक पैसों में करम कर सकते हैं। मनुसलवा जो है वो आपके लिए आ सकता है, कोई जैकपॉट लग सकता है, कोई रिकवरी निकल सकती है, उसको चेज करते रहिए। पैसे को बढ़ाने के हर जायज और हलाल तरीकों पे काम करते रहिए। और वार्निंग जोन, दिल लगी महंगी पड़ सकती है, तो इसमें अलर्ट हो जाइएगा। बच्चों के ऊपर बहुत आपने तालीम के साथ तरबियत का भी ख्याल रखना है। दोस्तियां भी एक नेमत होती हैं, तो दोस्तियों का इम्तिहान ना आ जाए, और क्योंकि जेमिनाई होते भी बहुत दोस्त नवाज हैं, तो फिर आपको वो दिल ना दुखा के चली जाए। अगला सितारा कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान वाले जो है ऑलरेडी एक अच्छे जोन में आ चुके हैं और अपने ताल्लुकात को अच्छा कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, सोशल रिलेशंस, और जो री मैरी करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बेस्ट टाइम है। अगला सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद। लियोस 2009 से सितारा पटरी से उतरा हुआ है। अभी भी जो है जितनी दुआएं मांग सकते हैं लियोस मांगिए, क्योंकि आपको साल के सेकंड हाफ से लगेगा कि जो जो शहर के पास रब ताला की जात है, मैं जो जो मांग रहा था मेरे पे इनायतें होनी शुरू हो गई। तो डिसहार्ट नहीं होना, आपका अच्छा टाइम रब ने चाहा। वैसे भी एस्ट्रोलॉजी का नया साल मार्च एंड से शुरू होता है, तो वहीं से आप जो है ना अल्लाह की रहमत में आ जाएंगे। टिल देन अपना रूहानी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसमें आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं जो अगला सितारा है वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला। सुंबला ने बहुत सफर किया है 2025 में जो है अपनी रिलेशनशिप हाउस के अंदर जो है, और जो है अल्लाह ताला अब आपको जिनके रिश्ते बच गए हैं और जिनके नहीं बचे आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, बट साल के 2026 के सेकेंड हाफ में, और तब तक आपने अपने आप को डाउन नहीं होने देना। अब आते हैं जी लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान। आपको भी लिब्रा अपने रिलेशनशिप पे मेहनत करनी है इफ यू डोंट वांट टू लूज देम। तो फिर आप जो है ना ग्रिप कीजिए, मेहनत कीजिए, रिश्तों को, मैरिज को, रिलेशंस को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल मत लीजिएगा। और ब्लेसिंग कहाँ है लिब्रा के लिए? जहाँ पे उनके कारोबार है, वो लोग जो शोहरत के ख्वाहिशमंद है, आपका काम है अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना। अल्लाह ताला आपके लिए कई ऐसे रास्ते खोल सकते हैं। अगला सितारा आ गया स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब के जो लोग हैं। इस वक्त सितारा जो है अल्लाह के हुक्म से आपको पहले ही एक सेफ जोन में लेके आ चुका हुआ है। अगले साल 11 मार्च के बाद से आपको फील होना शुरू हो जाएगा। दी बेस्ट टाइम है मेरे स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स के लिए, बहुत प्यारा टाइम है। आपका काम है मेहनत करना, और देखिएगा रिमार्केबल कामयाबियां अल्लाह आपको नवाजेंगे। और आपको केयरफुल रहना है, जो बीमार हैं अपने सेहत को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। वर्क मैनेज कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जो नौकरी में मेरे स्कॉर्पियंस हैं, आपको अपनी जान मारनी पड़ेगी, लेकिन जान मारनी है तो सेहत की सलामती उसके लिए शर्त है। अगला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस के जो लोग हैं। 2026 वाला जो साल है, जहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा अलार्मिंग है रोमांस एरिया में। ओके। बच्चों के रिलेटेड वहम, खदशात, तफक्कुरात, अल्लाह ना करे कि आपको सामना करना पड़े, दोस्तियां। और लेकिन जो अल्लाह की ब्लेसिंग है, फर्स्ट हाफ में अल्लाह माली मदद करते रहेंगे, और सेकंड हाफ से फिर मेरे सेजिटेरियंस का किस्मत का टेक ऑफ होगा। अगला सितारा कैप्रिकॉनियन यानी कि बुर्ज जदीद साल का फर्स्ट हाफ ब्लेसिंग दे रहा है रिलेशनशिप में, चाहे आप ऑलरेडी मैरिड हैं, बिजनेस अलायंसेस में हैं, या जाना चाहते हैं, दोनों तरह से सितारा आपकी मदद करेगा। और अगला सितारा इक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलों के जो लोग हैं, इनके लिए जो है अगर आपने वो करनी है, अपनी रिश्तेदारियों को बचाना है इक्वेरियंस, तो आपने बहुत ज्यादा ससुराली रिश्तेदार हैं, खानदानी जिप लगा के आपने चलना, वरना बहुत जो है ना क्योटिक सिचुएशन हो सकती है। और जो सितारे की ब्लेसिंग है, एक्वेरियंस फर्स्ट हाफ ब्लेसिंग दे रहा है जॉब एरिया, हेल्थ एरिया के अंदर,
गैब, अल्लाह ना करे कोई बीमार भी है तो अल्लाह पाक गैब से शिफा देंगे उन्हें, और सेकंड हाफ फिर आपको आपके मैरिज हाउस में प्यारी सी ब्लेसिंग देगा। आखिरी आसमानी सितारा है पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत, इन्होंने भी बहुत तकलीफें काटी हैं। आपको मुबारकबाद कि फरवरी के मिड के बाद से आपका एक रफ पैच खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले 2 साल खाना माल की एहतियात में आप चलोगे। इस वक्त सितारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेसिंग देता है फर्स्ट हाफ में, आप अगर औलाद के ख्वाहिशमंद है या औलाद के लिए कुछ करना चाहते हैं वहां पे, और अगर औलाद नरीना की ख्वाहिश है तो भी, और लव लाइफ में कोई मजेदार क्लिक हो सकता है। तो जो लोग तकलीफ सह रहे थे अपने रिश्तों में, उनको ये वाला साल जो है कोजी सी करके जाएगा। सामिया थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सामिया की खास बात है कि जब वो कुछ बता रही होती है ना, प्रेडिक्शंस कर रही होती है आने वाले वक्त के बारे में, तो आपको इर्द गिर्द की चीजें आप भूल जाते हैं और गौर से उनको सुनने वाले होते हैं। फोकस सारा उधर, जितने भी ज़ोडिक साइन वाले हैं सबको बता दिया गया है कि भाई आपने किन चीजों से एहतियात करनी है, और कौन जो है ना वो तैयारी कर ले, उनके लिए साल 2026 अच्छा रहेगा। मेरा तो वैसे अच्छा रहने वाला है। आपने गौर से सुन लिया? मैंने बहुत गौर से सुना। उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी एक सेफ जोन में हूँ, आगे मजीद इंशाल्लाह। मुझे तो कह रही है कि जरा ठीक रहे अपने